Hello students, myself Dr. Preeti Sharma. Students, we have already started the chapter 1 of your book Hornbill. Now let's proceed the chapter. As the little bit excuse as the years yes as the years rolled, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. Student, we have read that the author was living with his grandmother in the village. But when his parents were well settled in the city, they called both the author and his grandmother to the city. Now, there came a change in their relationship because in the village, both the grandmother and the grandson used to spend the complete day all together. But now, when the author has moved to the city, now he has been admitted to an English medium school where the grandmother was no longer used to go with him to the school. So the author is saying, as the years rolled by, as the year rolled by means जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैसे 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 साल बीतते गए, we saw less each other. हम एक दूसरे को कम से कम देख पाते थे. हम मतलब ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, क्योंकि अब ऑथर उसने पहले ही हमें बता दिया. अब ऑथर जो था वो स्कूल जाता था मोटर बस से, और उसकी ग्रैंडमदर भी उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी. गांव में तो वो दोनों एक ऐसे स्कूल में जाते थे वेयर द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. व्हेन द ऑथर वॉज रीडिंग इन द स्कूल, his grandmother used to pray in the temple, and they also came back home together. So in this way their union was very fast, very strong. But now in the city there came a gap in their relationship because the author used to go to the school alone and his grandmother used to remain at the house alone. So he is saying that as the time passed by, they saw each other very little bit. वो एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे. For some time she continued to wake me up. कुछ समय तक तो ऐसा रहा स्टार्टिंग में कि ऑथर की ग्रैंडमदर उसको सुबह उठाती थी एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, एंड शी यूज टू make the author prepare for the school as she used to do in the village also. जैसे वो गांव में किया करती थी उसी तरह से वो शहर में भी शुरुआत में तो ऑथर को स्कूल के लिए तैयार भी करती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had. और जब ऑथर स्कूल से वापस आता था तो ग्रैंडमदर ऑथर से पूछती थी कि टीचर ने क्या हैड टॉट मी, टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया. ये वो ऑथर से पूछती थी. ठीक है, टॉट मी. I would tell her English words and little things of Western science and learning. And the author replied him that in the school he was taught English and science, means in the schools of the city the author was getting the teachings of English medium school. He was taught English preferably, and the main focus of the school was to give scientific and modern and technical knowledge to the student. The laws of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. The author Khushwant Singh told his grandmother that in the school they were given knowledge of the law of gravity. वो बताता है कि साइंस में उन्हें ग्रेविटी का लॉ पढ़ाया, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो सिखाया,
और द वर्ड्स बीइंग राउंड एक्सेट्रा, कि ये जो दुनिया है, ये पृथ्वी गोल है, ये क्यों है, मीन्स ये सारी साइंटिफिक जो लर्निंग थी, ये सारी लर्निंग्स स्कूल में दी जा रही थी उसको। और जब ऑथर स्कूल से वापस आता था, उसकी ग्रैंडमदर उससे पूछती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया, तो ऑथर ये सारी बातें अपनी ग्रैंडमदर को बताता था। अब इससे क्या होता था, दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब बातें सुनकर उसकी ग्रैंडमदर थोड़ी सी दुखी हो जाती थी। क्यों? शी कुड नॉट हेल्प मी with my lessons, because the grandmother herself did not have a deep knowledge of English and science and the laws of Archimedes, etc. So, in the city, the grandmother was unable to help the author in his studies, whereas in the village, she used to help her grandson in the studies. She did not believe in things they taught at the English school. उनको वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो ग्रैंडसन को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी, एंड वॉज distressed that there was no learning about God and scriptures. और सबसे ज़्यादा जो दादी माँ को दुखी करता था, परेशान करता था, वो ये था कि सिटी स्कूल में ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में, और स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक पुस्तकों, यानी धर्म के बारे में, मीन्स मॉरल टीचिंग, रिलीजियस टीचिंग, स्पिरिचुअल टीचिंग, इन सब के ऊपर सिटी स्कूल में एम्फसाइज नहीं किया जाता था। इस बात को लेकर दादी माँ बहुत दुखी होती थी। मीन्स द ग्रैंडमदर वांट्स दैट हिज ग्रैंडसन, along with the knowledge of science, along with the knowledge of English, along with the knowledge of modern technology, he should also get the knowledge of moral teaching. He should also get the knowledge of religious books and God, so that he should have a strong character in himself. लेकिन ये सारी नॉलेज उसको सिटी स्कूल में नहीं मिलती थी, जिससे ग्रैंडमदर दुखी होती थी और वो उसको उसकी पढ़ाई में हेल्प भी नहीं कर पाती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन जब ऑथर ने अपनी ग्रैंडमदर को ये बताया कि स्कूल में उन्हें साइंस के साथ साथ, इंग्लिश के साथ साथ म्यूजिक भी पढ़ाया जाता है, तो क्या हुआ, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो ये सुनकर तो दादी माँ बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड एसोसिएशन कहते हैं मीन्स नास्तिक प्रवृत्ति कह दो, या फिर कहते हैं अनैतिक, मीन्स अच्छा नहीं मानती थी, क्योंकि दादी माँ के अनुसार जो म्यूजिक है या नाचना गाना है, ये अच्छी शिक्षा नहीं है, इसकी संगति अच्छी नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots and beggars and not meant for जेंटल फॉक। उनके अनुसार ये जो म्यूज़िक की शिक्षा है, ये फ़कीरों के लिए बनी है, और ये बनी है आपके जो बैगर्स वगैरह होते हैं, वो भीख मांगते मांगते मतलब म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, ये जेंटल लोगों के लिए ये नहीं बना है। तो उनको स्कूल में दी जाने वाली जो म्यूज़िक की टीचिंग थी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें नहीं पसंद आया कि स्कूल में उनके ग्रैंडसन को म्यूज़िक पढ़ाया जाए। She said nothing but her silence meant disapproval. हालांकि उसकी ग्रैंडमदर ने ये सुनकर बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका जो साइलेंस था, उनकी जो चुप्पी थी, वो ये बता रहा था कि वो डिसअप्रूव करती हैं द टीचिंग ऑफ म्यूजिक इन द स्कूल। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद से दादी माँ मुझसे बहुत कम बात करती थी, बहुत ही कम मौक़ों पर हमारी बातचीत होती थी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे पढ़ाते हैं। यस, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। अब आगे जो थर्ड फ्रेज है, मतलब नेक्स्ट फ्रेज है उसकी लाइफ का, मीन्स जब उसका स्कूल हुड कंप्लीट हो गया खुशवंत सिंह का, और वो हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी गया, तो वहाँ की स्टोरी बता रहा है।
तब उस समय उसका और उसकी दादी माँ का रिलेशनशिप कैसा था। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own. Then he was given a separate room for himself and his grandmother started living in a separate room alone. मीन्स जब ऑथर इतना बड़ा हो गया कि वो यूनिवर्सिटी जाने लगा, हायर स्टडीज में आ गया, तो ऑथर को और उसकी ग्रैंडमदर को दो अलग अलग कमरे दे दिए गए। अब उसका जो ग्रैंडसन था खुशवंत सिंह, वो अलग कमरे में रहता था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप का मतलब होता है थोड़ा टूटना या उसमें थोड़ा गैप आ जाना। अब उनके बीच में जो फ्रेंडशिप था उसमें थोड़ा सा गैप आ गया, क्योंकि अभी तक तो दोनों कम से कम विलेज में तो पूरा दिन साथ रहते थे। जब वो स्कूल में आ गया तो दिन का थोड़ा सा पार्ट दोनों साथ साथ स्पेंड करते थे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी में आने के बाद दोनों अलग अलग रूम में रहते थे, तो दोनों अब उस पूरे पूरे दिन एक दूसरे को ना देख पाते थे, ना ही उनकी बातचीत होती थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विद रेजिग्नेशन। और मेरी ग्रैंड मदर ने स्वीकार कर लिया था अपना एकांत शांति से। सेक्युलेशन एकांत, रेजिग्नेशन मीन्स शांति से। उन्होंने मीन्स अपनी मर्जी से, अपनी शांति से अपना ये एकांत स्वीकार कर लिया। उन्होंने कोई अपोज नहीं करा, कोई रिएक्शन नहीं दिया। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। और वो अपना स्पिनिंग व्हील कहते हैं चरखा, ठीक है, चरखे को बहुत ही कम छोड़ती थी। मीन्स ऑल द टाइम शी यूज टू स्पिन द व्हील टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए। मीन्स वो अपने रूम में बैठकर अपना स्पिनिंग व्हील मूव करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सनराइज से लेकर सनसेट तक वो अपने स्पिनिंग व्हील के साथ बैठती थी और अपनी प्रेयर्स को स्पिनिंग करते करते रिसाइट करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल। केवल दोपहर के समय थोड़ी सी देर के लिए वो आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज। और इस बीच भी वो रिलैक्सेशन के दौरान स्पैरोज यानी चिड़ियों को फीड करती थी, उनको दाना डालती थी, उनको खाना खिलाती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा। वो स्पैरोज को फीड करने के लिए घर के वरांडा में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। और जो ब्रेड होती थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी बर्ड्स के लिए। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर। और कई 100 बर्ड उनके चारों तरफ कलेक्ट हो जाती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग। और वो इतनी जोर जोर से चिरपिंग करती थी, चहचहाती थी, ऐसा लगता था जैसे कि दादी माँ के आसपास एक वास्तविक बेडलम कहते हैं एक तरह से मेंटल हॉस्पिटल या मेंटल असेसमेंट, मीन्स एक पागल खाना बन गया है। मीन्स उनका शोर इतना तीखा होता था कि ऑथर उसको एक मेंटल हॉस्पिटल से कंपेयर कर रहा है। वो कहता है ऐसा लगता था कि उनके आसपास एक चिरपिंग का, एक बर्ड्स की चिरपिंग का पागल खाना ही बन गया है। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। पर्च कहते हैं जो बर्ड्स आकर एकदम से फ्लाई करते करते बैठ जाती हैं, उसको उस एक्शन को पर्च्ड कहते हैं, ठीक है। तो कुछ बर्ड्स क्या करती थी, उनके लेग्स के ऊपर आकर बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ बर्ड उनके हेड पर भी बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. And the grandmother was so happy seeing this movement of the bird that she used to smile at this movement. She never flew them away from her body. वो अपनी बॉडी से उनको उड़ाती नहीं थी, बल्कि वो खुश होती थी। It used to be the happiest half an hour of the day for her. And this half an hour when the grandmother used to feed the sparrows, which time she used to spend along with the companies of the sparrow. This is the happiest half an hour of her day. ये उनके दिन का सबसे खुश आधा घंटा होता था जिसमें वो सबसे ज़्यादा खुश रहती थी। When I decided to go abroad,
फॉर फर्दर स्टडीज। अब ऑथर अपना नेक्स्ट फेज बता रहा है लाइफ का। अब उसकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी कंप्लीट हुई, अब बारी आती है उसका अब्रॉड जाने के लिए अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो जब राइटर ने डिसाइड करा कि वो अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाएगा, आई वॉज श्योर, मैं बिल्कुल इस बात के लिए श्योर था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि ये खबर सुनकर मेरी ग्रैंड मदर जो है वो अपसेट हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years because I'm going away abroad for my further studies for long 5 years। अपनी बूढ़ी दादी माँ को छोड़कर वो 5 साल के लिए विदेश जा रहा था पढ़ने के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नॉट टेल। और जो दादी माँ की उम्र थी वो ऐसी उम्र थी कि कोई इस बात को नहीं बता सकता। क्या नहीं बता सकता? कोई ये बात नहीं कह सकता कि 5 साल बाद जब ऑथर लौट कर आएगा तो क्या उसको अपनी ग्रैंड मदर वापस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बिकॉज शी इज़ वेरी ओल्ड। तो इस बात से दादी माँ बहुत दुखी थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो इस बात को जानती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। और इसलिए ऑथर के जाने की खबर सुनकर ग्रैंड मदर बिल्कुल भी सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, मतलब बिल्कुल इमोशनल हुई नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब उनका ग्रैंडसन लौट कर आएगा वो उसके वेलकम के लिए मौजूद होंगी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। और इसी वजह से वो ऑथर को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन उन्होंने अपने सारे इमोशन अपने मन में ही छुपा कर रखे और अपने ग्रैंडसन से कुछ भी नहीं कहा और सारे इमोशन अपने मन में ही छुपा कर रखे। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स। लेकिन उस टाइम भी उनके लिप्स, उनके होठों से लगातार प्रेयर्स ही सुनाई पड़ रही थी। उनके लिप्स लगातार प्रेयर को बोलने में हिल रहे थे। वो अपने ग्रैंडसन के लिए प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और वो अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह से प्रेयर में लॉस्ट थी, खो गई थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी एंड इन वन ऑफ हर हैंड शी वॉज होल्डिंग the rosary of beads, and continuously she was telling the beads of the rosary। वो लगातार अपने हाथों में जो मोतियों की माला थी, जो तुलसी के मोती की माला होती है, वो उस माला को लगातार घुमा रही थी, उसको लगातार काउंट कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड, उन्होंने ऑथर के फोरहेड को किस करा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब वो वहाँ से चला गया, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब राइटर वहाँ से चला गया तो उसने चेरिश कर लिया, मतलब संभाल कर रखा अपने मन में, किस चीज़ को? द मॉइस्ट, उस नमी को। इम्प्रिंट्स मीन्स उसकी दादी माँ ने जो उसके हेड पर किस करा था, तो उनके उस प्यार की नमी को उसने अपने मन में सजो कर रखा, उसको संभाल कर रखा, क्योंकि एज परहैप्स उसे नहीं पता था द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। हो सकता है कि ये दादी माँ का जो किस था वो उसकी दादी माँ का उसके साथ लास्ट जो कांटेक्ट हुआ है उसका साइन हो जाए, क्योंकि उसके मन में ये डर था कि 5 साल बाद जब वो वापस आएगा तो शायद उसके साथ उसकी दादी माँ नहीं होंगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इतना पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो कांटेक्ट करिएगा। हैव अ गुड डे।